Hello students, welcome to Nija Education. Like, share and subscribe our channel to get more educational videos. Today we will be seeing second chapter of economics of class 10, that is sectors of the Indian economy. What do we understand by sectors? Sectors means areas. Whoever you see around you, they are all indulged in some or other kind of activities to earn money. मतलब हम अपने आसपास जितने भी लोग देख रहे हैं वो कमाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं. And we can bifurcate these activities into three areas. Which are these three areas that we will understand now? First is primary. What do we understand by primary sector? Primary sector has all such activities whose final product is natural product. मतलब कि ऐसी सारी एक्टिविटी जिसके एंड रिजल्ट एंड प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग. So what we are getting as end product? Crops. They are natural. They are not made in laboratories or industry. They are naturally produced. Okay. So whenever we are exploiting natural resources and we are producing natural products, those all activities are primary activities. इसके दूसरे examples क्या हो सकते हैं? Dairy farming, fishing, poultry farming, mining. Okay. So this all are examples of primary sector. As it is mostly related with farming, it is also called agriculture and associated sector. Okay. Secondary sector. दूसरा जो एरिया है, दूसरा सेक्टर है, that is secondary sector. Secondary sector has machine made goods. उसके final products जो हैं वो machine made, industry made goods होते हैं. For example, cotton mills, automobile, whatever goods are produced, manufactured through machineries, they all belong to this sector. And as it is associated with industrial goods, it is also called industrial sector. क्योंकि यहाँ पे mainly जो work हो रहा है वो industries में, factories में हो रहा है. So we also call them industry made goods. And this sector is also called industrial sector. ठीक है. Then third is tertiary. Please remember the pronunciation, इसे tertiary pronounce करते हैं. Tertiary sector, their end products are not any physical products but rather they are services. जैसे कि आप schools में जाते हो तो what you are getting service of teaching. ठीक है. You are getting education which is a service. Hospitals में you get health services. Banking, they all are services. Transportation, they also belong to tertiary sector. ठीक है. एंड टर्सरी सेक्टर की जो एंड प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑल सर्विसेज एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट सर्विस सेक्टर. ओके. नाउ दिस ऑल थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट. मतलब कि एक में अगर ग्रोथ होगा एक सेक्टर में तो उसकी इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर में हमें ज़रूर देखने को मिलेगी. एंड ये हम इजीली समझ सकते हैं क्योंकि अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, ठीक है, तो उसमें आयरन स्टील इन सब का यूज करके गाड़ी का इंजन बन रहा है. तो आयरन एंड स्टील कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है. राइट. थ्रू माइनिंग वी आर गेटिंग दिस ऑल मेटल्स एंड वी आर यूटिलाइजिंग देम एज रॉ मटेरियल्स एंड देन थ्रू मशीनरीज वी आर प्रोड्यूसिंग कार्स एंड इंजन्स एटसेट्रा. ठीक है. तो मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर में हमेशा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है. अब देखो ये जो टर्शरी सेक्टर में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन मेनली कब होगा? भाई यहाँ पे कोई कॉटन की मिल है जिसके अंदर कॉटन प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल हो गया कॉटन, उसका यूज़ करके कुर्तीज़, पैजामाज, जीन्स, शर्ट्स ये सब बन रहा है. बट अब ये इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में एक बार कॉटन मिल में बन गया, उसके बाद उसको थ्रू व्हीकल्स, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू सिटीज, है ना, जहाँ पे फाइनली इनकी सेलिंग होगी. ठीक है. तो इसीलिए ऑल दिस थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट. लाइक फार्मर्स दे ऑल्सो गेट लोन फ्रॉम बैंक, है ना. इनिशियली जब फार्मर को फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज इन सबको खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो फार्मर वुड बी टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स. बैंक बिलोंग टू टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर. तो इस तरह से all these three sectors are interdependent. And now we will be seeing one very important definition of this chapter, that is gross domestic product.
जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब समझने के लिए वी विल टेक अ सिंपल एग्जांपल। समझो कि कोई एक मिल्कमैन है, ठीक है, एंड ही डोमेस्टिकेट एनिमल्स, ठीक है, ही रेयर्स कैटल्स, काउस, बफेलोज, एंड दिन का जितना भी मिल्क उसको मिल रहा है अपने इन कैटल्स के थ्रू, वो अपने ही गांव के लोगों में उस मिल्क को बांट देता है, ठीक है, मतलब कि सेल कर देता है। तो वॉट एवर दैट मिल्कमैन इज अर्निंग थ्रू दिस मिल्क सेलिंग इज द इनकम ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, मतलब कि वहां पे फाइनल गुड क्या हुआ, ये मिल्कमैन के लिए मिल्क हुआ, तो वो मिल्क के जरिए उसकी जितनी भी अर्निंग, जितनी भी इनकम हो रही है, उस इनकम को हम प्राइमरी सेक्टर की इनकम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेकेंडरी के अंदर समझो कि कोई कॉटन मिल है, उस कॉटन मिल के अंदर जितने भी रेडीमेड क्लोथ्स बन रहे हैं, जितने भी क्लोथ्स बन रहे हैं, तो उन क्लोथ्स की सेलिंग के थ्रू जितना भी वो अर्न कर रहा है पर्सन सेकेंडरी सेक्टर का, वो वहां की उस पर्सन की इनकम हो गई सेकेंडरी सेक्टर की, ठीक है। थर्ड है टर्शरी सेक्टर। समझो कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कोई एक पर्सन है जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चलाता है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के थ्रू उसकी जो भी इनकम हो रही है विद इन अ ईयर, वो सारी चली जाएगी सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की इनकम में, ठीक है। अब क्योंकि ये अलग 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 सेक्टर की इनकम्स हैं, हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा, और उन सब इनकम्स को ऐड करके हमें जो फाइनल सम मिलेगा, सम ऑफ मनी, दैट इज नथिंग बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हियर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया एक मिल्कमैन का, वो अपने ही गांव वालों में ये मिल्क सेल कर रहा है, तब तक ठीक है, तो वो इनकम जा रही है प्राइमरी सेक्टर में। ही वॉज अर्निंग लेट्स से 84,000 रुपीज, बट नाउ इंस्टेड ऑफ सेलिंग मिल्क टू विलेजर्स, ही इज सेलिंग मिल्क टू सम चॉकलेट मेकिंग कंपनी, ठीक है। अब चॉकलेट मेकिंग कंपनी ने इस दूध को ले लिया, एंड फ्रॉम दिस मिल्क chocolate making company is producing chocolates whose worth is 1,50,000। तो ये जो 84,000 था जो मिल्कमैन की इनकम थी, वो तब ऐड होगी प्राइमरी सेक्टर में जब वो विलेजेस में बांट रहा है। लेकिन अगर उसने उस मिल्क को चॉकलेट मेकिंग कंपनी को सेल कर दिया और चॉकलेट मेकिंग कंपनी 1,50,000 में उन चॉकलेट्स को बेच रही है, तो यहाँ पे कोई भी इनकम 84,000 जो थी मिल्कमैन की, वो ऐड किए बिना डायरेक्टली सेकेंडरी सेक्टर में 1,50,000 ऐड होंगे, और प्राइमरी सेक्टर में कोई इनकम ऐड नहीं होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर से जो चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर में जा रही है, तो उस रॉ मटेरियल की वैल्यू यहाँ पे काउंट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि गेहूं का इस्तेमाल करके बिस्किट्स बन रहे हैं, तो वीट की सेलिंग प्राइस जो होगी, जो फार्मर को मिलेगी, वो हम यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि उसने गेहूं किसको बेचे हैं? बिस्किट मेकिंग कंपनी को, और बिस्किट मेकिंग कंपनी के बिस्किट्स की जो वैल्यू है, उसके अंदर उस गेहूं के रॉ मटेरियल की वैल्यू एडेड है। सो दिस वी नीड टू टेक केयर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी। ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एडेड। So now we will be seeing the actual definition of GDP. Total value of all final goods and services produced in a country in a year is known as GDP. मतलब कि एक साल के अंदर एक कंट्री में अलग अलग सेक्टर्स में, इन ऑल दिस 3 सेक्टर्स, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी टोटल वैल्यू जो है, दैट इज द जीडीपी ऑफ दैट particular country. Now this GDP is very important term. इस पर से हमें उस particular country की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। Okay, now other thing is all these 3 sectors are interdependent. मतलब कि एक सेक्टर में जो भी ग्रोथ होगा, उसका डेफिनेटली हमें सेकेंड सेक्टर में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। If we talk about old times, 700-800 years back, then primary sector was considered the most important sector. Why?
बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल वेर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, इन्हीं सब चीज़ों में लोग लगे हुए थे। तो तब प्राइमरी सेक्टर वॉज कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। बट विथ टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन केम, मशीनरीज वर डेवलप्ड एंड लेस लेबर वॉज रिक्वायर्ड इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना। और फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, इन सब के चलते जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा एग्रीकल्चर में। दैट इज़ ट्रू विथ लेस एफर्ट्स कंपैरेटिवली, क्योंकि मशीनरीज आ गई। तो तब आया सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया साथ साथ। तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन दैट केम इन प्राइमरी सेक्टर, देयर इमर्ज सेकेंडरी सेक्टर। तो अब ज़्यादातर लोग जो फार्मिंग करते थे उसमें से कुछ लोग फार्मिंग को छोड़ के या फिशिंग कर रहे थे, डेयरी फार्मिंग कर रहे थे, वो लोग वहाँ से छोड़ के सेकेंडरी सेक्टर में काम करने लग गए। इंडस्ट्री मेड गुड्स की वैल्यू और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो सेकेंडरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया। अब क्या हुआ, अगर हम पिछले 100-200 साल में देखें, सो नाउ पीपल आर अर्निंग मोर मनी, दे इंजॉय एंटरटेनमेंट, दे इंजॉय अदर एक्टिविटीज़, ठीक है ना, क्योंकि थिएटर्स, मूवीज, ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, दे ऑल कैन बी कंसीडर्ड एक्टिविटीज़ ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो लोगों के पास पैसे बड़े, अब लोग मूवी देखने जा रहे हैं, होटल में खाने जा रहे हैं, हाँ, प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट व्हीकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट में, कम्यूटेशन में जुड़े हुए हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स इन पास्ट 100 to 150 years टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। अनदर थिंग इज, अब सब लोग, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में भी लोगों का अकेला सहारा जो है वो क्या है, इंटरनेट। तो इंटरनेट सर्विसेज भी किस में आएगी, टर्शरी सेक्टर में आएगी, सर्विस सेक्टर में आएगी। तो नाउ पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, पीपल आर यूजिंग telecommunications, mobile, all these services which all belong to tertiary sector. So in past few years importance of tertiary sector, importance of service sector has grown, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ हुआ, ठीक है, इसलिए उसकी एक इफेक्ट हमें टर्शरी सेक्टर में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। सो इफ वी कंक्लूड दिस, देन we can understand that primary, secondary and tertiary, this all three sectors are the different areas of economy and they are all interdependent. And when we add value of all the final goods and services that are produced in each sector, then that gives us GDP, that is gross domestic product of the country in a year. अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। Okay, so see you in the next video.